یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے آنر کی اور میں یہاں پہ قرآن اینڈ سائنس کے سلسلے میں ایک پریزنٹیشن دے رہا ہوں، اور آج اس کا موضوع ہوگا The Science of Allah in the Design of the Universe۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سنريهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم حتی یتبین لهم انہ الحق۔ تو ہماری انسپائریشن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو زمانہ آتا جائے گا دکھاتے جائیں گے آپ کی ذات میں اور آفاق میں اپنی نشانیاں، حتیٰ کہ آپ کہہ اٹھیں گے کہ جو کچھ قرآن پاک میں ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ تو it means we are exploring the living proof of the truth of this book that it cannot be a human written book۔ آج کل کے دور میں ہمارے ہاتھ میں یہ ثبوت ہوگا کہ یہ ناممکن ہے، یہ سائنٹیفک تخلیق، اللہ کی تخلیق اللہ کے قرآن کی تصدیق کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، اور مختلف جگہوں پہ کبھی یؤمنون کبھی یوقنون یا یعقلون یتفکرون، اس طرح سے مختلف انداز میں اللہ ہمیں انسپائر کرتے ہیں کہ ہم اس کی تخلیق کو دیکھیں۔ قرآن پاک میں 752 آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ انسپائر کرتے ہیں کہ ہم دیکھیں تخلیق کو۔ That is work of God and this is what is in our mouth is word of God۔ تو work of God enhance the understanding of the word of God۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کو مزید اس کی میننگ کو بڑھاتا ہے۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ 752 آیات تو اس سلسلے میں قرآن پاک میں ہیں، کون توجہ دے رہا ہے؟ اگر ہم اپنی مذہبی پیشواریت کو دیکھیں تو وہ الٹا اس کی مخالف نہیں کر رہے۔ ہمارے سائنٹسٹ قرآن پاک میں نہیں رکھتے دسترس۔ تو یہ بہت کم لوگ ہیں دنیا میں جو اب وہ بھی ماڈرن مائنڈ اور علامہ اقبال کے ماڈرن ایجوکیٹڈ سسٹمز جو کہ اب اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں اور ان کے پاس ٹائم بھی ہو اور وہ، تو ہم نے قرآن سائنس تھنکر فورم کینیڈا کے نام سے وہاں ایک سرکل بنایا ہے جس میں ہم اس چیز پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جتنا زیادہ تر علماء قرآن پاک کو مقدس تو بہت سمجھتے ہیں لیکن اس کے مطالب کو نہیں سمجھتے۔ اگر وہ سمجھتے ہوتے تو کوئی فرقہ نہ ہوتا ہے، یہاں کوئی یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی آخرت میں اللہ تعالیٰ سے عرض کریں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ ہمارے نبی کہیں گے اپنے رب سے کہ یا اللہ یہ میری قوم نے یعنی مسلمانوں نے قرآن پاک کو بالکل بے اثر کر دیا تھا، بالکل اپنے خیالات میں جکڑ کے رکھ دیا تھا، آزاد نہیں چھوڑتے تھے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آفٹر 200 ایئر آف ہجرہ آپ کو قرآن پاک چومنے چاٹنے میں تو نظر آئے گا لیکن فقہ میں، شریعہ میں، جورسپروڈنس میں بہت کم نیگلیجبل نظر آئے گا۔ تو ہماری ایفرٹس ہیں کہ ہم اس کو ایکسپلور کریں، اور سائنس ایڈوانٹیجز کیا ہیں اس کو ایکسپلور کرنے کے؟ لقاء ربہم، اللہ تعالیٰ کی فٹ پرنٹس ہم دیکھتے ہیں۔ ابھی آپ تھوڑا سا آگے رہیں، کانسیپٹ آف گاڈ کلیئر ہو جاتا ہے، ایک تھنکنگ پچ ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے، یعنی سکہ ادھر ہے تو وہ ادھر ہو جاتا ہے۔ ایتھینٹسٹی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے۔ مذہب کی دنیا میں ایتھینٹسٹی ڈیفائن نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا تو اتھینٹک ہو گیا، فلاں نے یہ فرمایا، فلاں نے بزرگ، سب حجتیں ہیں۔ لیکن ہم ماڈرن مائنڈ جو کہ کالجز سے نکلا ہوا ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ ایتھینٹسٹی جو ہے اس کے اندر بھی کوئی شک ہو۔ We want absolute authenticity, we demand absolute authenticity for our faith۔ اس کے بعد a tool in the hands of people, educated people، یعنی کہ ہم we by
exploring the universe, we empower ourselves with the power of Quran. और अगर पावर ऑफ कुरान हो तो यहाँ कितना भी बड़े मौलाना आला हजरत आ जाएं 4 मिनट में कुरान के सामने वो नहीं रह सकते। और ये हकीकत है। वो इतना बड़ा मसला लेके आएंगे, इतनी बड़ी चीज लेके आएंगे, इतनी बड़ी कहानी लेके आएंगे और हम कहेंगे दिस इज द ग्रेटेस्ट मिसकंसेप्शन। कुरान पाक तो ये कह रहा है, कुरान पाक तो ये कह रहा है कि हमारा सवाब दूसरे को पंप अप नहीं हो सकता, ट्रांसफर नहीं हो सकता। और वो यहाँ पे anyway, वक़द जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। एक और इंस्पायरेशन ये है कि अल्लाज़ी ख़लक़ समावाति वल अर्ज़ वमा बैना फ़ीहा सित्तति अय्याम सुम्मा इस्तवा अलल अर्श अर्रहमान फ़असाल बिल क़बीर। अल्लाह ताला ने तख्लीक की और ये कह रहे हैं कि इसके बारे में आप उनसे पूछें जो साइंटिस्ट हैं, जो जानते हैं, जिनको खबर है। एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये इंस्पायरेशन के लिए मैंने इसको लिखा है। Now the main thing starts. Hello. Yeah. Hello. तो साइंस ऑफ अल्लाह इन द डिजाइन ऑफ यूनिवर्स, इसमें हम इस फॉर्मेट को आप देखें। आम आदमी से पूछें तो उसको तो ये इल्म ही नहीं होता कि कोई डिजाइन भी है या कोई चीज भी है, हर चीज हो गई है, उसको क्यों मान लेता है? ये गिवन नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं लखलक़स समावाति वल अर्ज़ अकबर मिन खलक़िन नास वलाकिन अक्सर नास ला यअलमून, कि कायनात की तख्लीक आदम की तख्लीक से बहुत बड़ी थी लेकिन लोगों को पता नहीं और वाकई पता नहीं। तो इसमें हम देखेंगे कि डिजाइन में हम देखेंगे कि इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग क्या है, एग्जीक्यूशन एंड कमांड, और आखिर में फाइनल प्रोडक्ट की सिर्फ एक पेज आएगा मैं पेश करूंगा क्योंकि इसमें बहुत लंबा टॉपिक होगा। तो हम इस फॉर्मेट में अपना डिजाइन को डिफाइन करेंगे कि सबसे पहले इंग्रेडिएंट इस कायनात की क्या है। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट हैं। आइंस्टाइन जब लेयर हटाते 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 पहुंचा तो उसे सिर्फ 3 चीजें नजर आई, टाइम, स्पेस और एनर्जी। एनर्जी के लिए उसने कहा E=mc², टाइम के लिए स्पेशल रिलेटिविटी और स्पेस के लिए ग्रेविटी के लिए जनरल रिलेटिविटी 1916। उसके बाद कॉज खत्म है, नीचे अब ये चीजें विदाउट कॉज है। क्या है पीछे? लिकाए रब्बी। अब अल्लाह ताला के फुटप्रिंट्स हैं जब पर्दे के पीछे वही जात है जो कर रही है। क्योंकि ऐसे कवानीन जिसे कवानीन मशीयत कहते हैं जिनमें कॉज नहीं होती, या जिसे आप कहेंगे डायरेक्ट इंटरवेंशन, 5-6 मिसालें आपको उसकी मिलती हैं, ज्यादा नहीं है। बाकी जब कवानीन बन गए तो इन्होंने टेक ओवर कर लिया यूनिवर्स को, और यूनिवर्स को 1 कदम 2 कदम आगे लाते लाते उन्होंने अपना फाइनल प्रोडक्ट इंटेलिजेंट ऑब्जर्वर पैदा कर दिया जिसको हम आदम कहते हैं। We are a pattern of dust, just a pattern of dust, but programmed dust. तो और अल्लाह ताला वो कायनात खुद को अपने इंटेलिजेंट ऑब्जर्वर से खुद को दिखला रही है, न्यू समझे। तो 4 इंग्रेडिएंट, 3 इंग्रेडिएंट शुरू। अब एक है स्पेस, टाइम और एनर्जी। थोड़ा थोड़ा मैं इसकी स्लाइड्स मैं आपको वजाहत करता चलूंगा कि कुरान पाक में 3 तरह के आलम का जिक्र आता है, आलम अल अम्र, अल खल्क और यौम अल आखिरा। होंगी बेशुमार कायनात हैं, लेकिन अम्र में तो अल्लाह के कानून और मशीयत होती है, हुक्म चलता है, वो हमारी शूरी सतह से ऊंचा है। आलम अल खल्क जिसमें हम रहते हैं और इसके अंदर बेशुमार मलाइका हैं, लेकिन 8 कायनाती कुव्वतें हैं जिससे ये सारा चलता है, और इसके नेचुरल लॉस हैं जो हम देखते हैं, जो हमारे हम तो उनको क्यों समझते हैं, लेकिन ये अल्लाह ने बनाए हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट वर्ल्ड जिसमें हमें जाना है, उसके लॉज डिफरेंट हैं, उसकी
डेफिनेशंस डिफरेंट हैं, टाइम का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, ये सब चीजें वहाँ डिफरेंट हैं और हमारी रूह वहाँ जाएगी जिससे हम इस दुनिया में टच भी नहीं कर सकते। जिसे कॉन्शियसनेस कहते हैं, हम कहेंगे कि हम हैं, लेकिन कहाँ है? हमारा जिस्म को तो हम हाथ लगा सकते हैं, लेकिन रूह को नहीं, जो हमारी कॉन्शियसनेस है। तो स्ट्रिंग थ्योरी के अंदर 11 डायमेंशंस आते हैं। 4 डायमेंशन तो टाइम और स्पेस के 3 और टाइम का 1 तो हमें नॉन है। बाकी 7 डायमेंशन क्या है? तो पॉसिबली हम ये किसी और पैरेलल यूनिवर्स की तरफ इशारा करते हैं। ये पैरेलल यूनिवर्स, हमारी जो यूनिवर्स है, ये अल्लाह फरमाते हैं समाए बनाया मैंने अपने हाथों से इसे बनाया, अपनी पावर से इसे बनाया, उसे फैलाए जा रहे हैं। और 1998 में डिस्कवर हुआ कि विद एक्सेलरेशन फैल रही है। उनको 1911 में नोबेल प्राइज मिला कि ये कायनात फैल रही है और विद एक्सेलरेशन फैल रही है, और ये कोई बनी हुई चीज है, यानी ये ऐसे नहीं है कि खिलाफ फैल रहा है, ये एक बनी हुई चीज है और ये फैल रही है। अब टाइम, आगे थोड़ा सा टाइम का भी आता है। ये कायनात के फैब्रिक हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि जब ये एंड होगा तो इसको ऐसे रोल बैक कर देंगे जैसे एक मेम्ब्रेन को किया जाता है। तो वी आर लिविंग इन ए मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन की आखिरी हदों में वो हेरिकेन है जिससे मैग्नेटिक फील्ड और मुख्तलिफ तरह के फील्ड बनते हैं, और हम देखते हैं ग्रेविटी बनती है और ये चीजें। लेकिन ये बहुत टेक्निकल होगा, लेकिन ये बताना जरूरी है कि कायनात में स्पेस कोई बनी हुई चीज है जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने और स्ट्रक्चर खड़े किए हैं, और ये ही रिस्पॉन्सिबल है। इट इज 10 to the power -43 आई बिलीव कि इस वहां पे जाके इसका वो होता है, और ये बहुत ही बारीक, लेकिन इसके सबूत हैं जो साइंस कहती है। तभी आइंस्टाइन ने कहा था कि ये बनी हुई चीज है, क्योंकि आगे थोड़ा आगे चल के इसके मैं आपको सबूत भी 2-3 दूंगा। एनर्जी ये भी सॉलिड एनर्जी है, जो सॉलिड चीजें हैं, और हीट एनर्जी है। तो अल्लाह ताला ने 3 चीजें लेके स्पेस, टाइम और एनर्जी, और ये सारी कायनात बनाई। एनर्जी जो है वो ताकत की फॉर्म में भी होती है, जिसे हम कहते हैं ताकत है, और सॉलिड फॉर्म में जितनी सॉलिड चीजें बनी हुई हैं, ये एनर्जी की सॉलिड फॉर्म है। अब टाइम को देखें तो अब क्वाइज़ार, जिसे बारिक कहा गया है पुराने पाक में, वो एक गैलेक्सी के पीछे से देख रहे, पीछे से भी नजर आ रहा है, लेकिन वो चूंकि हमारी यूनिवर्स का जो मेम्ब्रेन है ये कर्व हो जाती है, तो पीछे से भी हम देख सकते हैं। इसी तरह सूरज के पीछे क्या हो रहा है वो भी हमें बार नजर आता है। तो ये वो आइंस्टाइन की प्रूफ है कि हमारी स्पेस कोई बनी हुई चीज है। इसी तरह टाइम, वही ये घड़ी यहाँ पे एक टाइम दे रही है 1 घंटा। जीपीएस जहाँ पे है, जीपीएस की 35,000 अबव अर्थ, वहां पे वो घड़ी थोड़ी सी स्लो करके रखी गई है ताकि वहां का टाइम और जमीन का टाइम बराबर हो। वहां ग्रेविटी नहीं है तो टाइम की रफ्तार थोड़ी तेज है। अगर ये घड़ी और वो घड़ी बराबर हो तो कभी हम जीपीएस काम ना करें। इसका मतलब है टाइम जहां पे आप हैं, जिस रफ्तार पे आप हैं, उस रफ्तार से वो टाइम है। तो टाइम बिल्कुल बनी हुई चीज है। और अगर हम कहें कि टाइम अबद से है, ये अब फलसफे की बात हो जाती है कि टाइम इनफाइनाइट एज से है, तो फिर हमारा ये लम्हा ना आ पाता, हम अभी तक वो कुआं ही भर रहे होते टाइम का। तो ये लम्हा है, ये दुनिया मौजूद है, ये प्रेजेंट है। इसका मतलब है टाइम भी बनाया गया जब कायनात बनी, और टाइम खत्म होगा जब ये कायनात लपेट दी जाएगी। तो स्टीव हॉकिंग ने तो लिख दिया ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, यानी टाइम एक ऐसी चीज है जो इस कायनात का एक कॉर्नरस्टोन है। तो अब आप कहेंगे कि आप मॉल रोड पे तमाम बिल्डिंग में
5th फ्लोर पे जाके मिलते हैं। तो मैं आपको ये कहूँ कि हम जाके मिलते हैं, हम कभी नहीं मिल पाएंगे। क्यों? मैंने टाइम नहीं दिया। मुझे टाइम भी देना पड़ेगा कि फलां वक्त 5 बजे फलां स्पेस के डायमेंशन में, इतना ऊंचा, इतना आगे पीछे, तो वहां पे मिलते हैं। तो टाइम इज ए डायमेंशन जो कि क्रिएट किया गया है इस स्पेस के साथ जो अल्लाह ने क्रिएट किया। इस कायनात का स्ट्रक्चर क्या है यूनिवर्स का? 73% तो डार्क एनर्जी है, 23% डार्क मैटर है, और हम कुछ नहीं जानते इन दोनों चीजों के बारे में। अभी इस वक्त तक साइंस कुछ नहीं जानती। इसके बाद 4% मैटर है जिसमें हाइड्रोजन है बाकी, और 0.4% सारे सूरज, गैलेक्सीज, हर चीज जितनी बन चुकी हो, और हाइड्रोजन कम होती जा रही है, बाकी एलिमेंट बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि कभी ये कायनात शुरू हुई थी, या जिस तरह फैलती जा रही है उसको बैकवर्ड करें तो एक नुक्ते पे आ जाती है। ये दूसरा सबूत है कि आदम से वजूद में आई। और तीसरा सबूत हमारे पास एक फुटप्रिंट्स, जिसे हम कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं, वो ये टीवी पे जैसे नजर आता है, कोई चीज नहीं आ रही हो तो फ्लिकरिंग नजर आती है, बहुत सी चीजें दाने दाने। तो वो वाकयात हैं जो कायनात की इब्तदा में हमारे पास थे। तो ये मैंने अब डिफाइन किया। पहला स्ट्रक्चर डिजाइन, इंग्रेडिएंट्स क्या है कायनात के। दूसरा पॉइंट है इसका स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। अब आपके जहन में जैसे सवालात आते जाएं तो आप जरूर उनको नोट किया जाए, क्योंकि इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस दीज थिंग्स। तो आप इसकी इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चर देखते हैं, जिसमें 92 टाइप की ब्रिक्स यूज की गई हैं, एलिमेंट्स, दैट्स इट। बाकी अनस्टेबल हैं, लेबोरेटरी में पैदा होते हैं, तो उनको छोड़ के 92 ब्रिक्स हैं। पहला हाइड्रोजन है और आखिरी 92 यूरेनियम है। और इसके अंदर की कहानी क्या है वो भी अभी हम देखेंगे। इसके बाद मैंने डिस्कस किया स्टार्स को। स्टार्स क्या चीज है? ये फैक्ट्रीज हैं टू प्रोड्यूस दीज ब्रिक्स। तो ये स्टार्स, दीज आर द फैक्ट्रीज जिसके अंदर एटम बनते हैं, जिसके अंदर हैवी एलिमेंट्स बनते हैं, और ये बन चुकते हैं तो वो फट जाता है और विद द स्पीड ऑफ लाइट खारिज करता है। उसके बाद सोलर सिस्टम के वर्लपूल बनते हैं, अर्थ बनती है, कंस्ट्रक्शन ये जारी है। हबल स्कोप से देखा जा सकता है मुख्तलिफ स्टेजेस को। ये मैं थोड़ा आखिर में आपको और बताऊंगा इसका। इसके बाद है जॉइंट गैलेक्सी व्हील्स। बिलियंस ऑफ स्टार्स आर कनेक्टेड विद वेरी स्ट्रॉन्ग पोल्स जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा है कुरान पाक में, सवा रज, यानी कि घूमते हुए आसमान। और अब हमने देखा कि ये बेशुमार हैं, एक एक गैलेक्सी के अंदर बिलियन सूरज होते हैं। अक्सर सूरज की जमीनें होती हैं, उनके चांद होते हैं, और कई सूरज जो बुझ चुके हैं। सूरज की एक लाइफ होती है, बड़े सूरज की छोटी लाइफ होती है 2, 3, 4 बिलियन ईयर्स। हमारा सूरज छोटा है, तो इसको बरकरार रखने के लिए थोड़ी हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन जल्दी है, तो ये 10 बिलियन ईयर्स की लाइफ है। 10 अरब साल तक ये चलेगा। 5 अरब हो चुके हैं, 5 अरब साल इसके रहते हैं, ये इसी तरह चलता रहेगा, फिर ये व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। लेकिन जो बहुत बड़ा सूरज होता है, जिसमें हमारे कई सूरज आ जाए, वो जब फटता है तो ब्लैक होल बन जाता है। तो ये अल्लाह ताला उसकी शहादत देते हैं और कहते हैं इतनी बड़ी शहादत है कि अगर आपको पता चल जाए तो वैसे बहुत बड़ी शहादत दी। और उसके बाद कहा कि कुरान पाक जो है किताबों में है। तो अब ये स्ट्रक्चर है कायनात का, इसको हम अब डिस्कस करेंगे। 92 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, आयरन, मुख्तलिफ गैसें हैं। ये इन्होंने एक तरतीब से रखे हुए हैं, मुख्तलिफ नाम है। हमारे जिस्म के अंदर भी 30-32 तो होंगे, ये नहीं काफ़ी है, लेकिन कई बड़े हैं। जितना बड़ा होता है इसका नंबर, 92 जैसे यूरेनियम है वो बहुत हैवी है। 62 नंबर है गोल्ड का,
आयरन का नंबर 26 है, तो जो जिसका नंबर जितना ज्यादा होगा उतना भारी होगा। अब ब्रिक्स का स्ट्रक्चर ये है कि दरमियान में न्यूक्लियस होता है या एटम है कार्बन का जो सेंटर में है, न्यूक्लियस दरमियान में है, इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है और इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब प्रोटॉन जो है वो प्लस एंड प्लस है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, प्लस एंड प्लस पुश करता है अपार्ट, लेकिन देखिए आप साइन ऑफ अल्लाह इन दिस डिजाइन कि अल्लाह ने स्ट्रॉन्ग फोर्स बनाई जो इसको काबू करके रखती है, और स्ट्रॉन्ग फोर्स की स्ट्रेंथ जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स से ज्यादा है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फोर्स से कम होगी तो फिट कर देगी, मतलब है वो बनेगी नहीं, तो थोड़ी सी ज्यादा है इलेक्ट्रिक फोर्स से स्ट्रॉन्ग फोर्स की, जो इसी सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर होती है। और सूरज के अंदर जब ये न्यूक्लियस से बाहर आके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में तब्दील होके जमीन तक पहुंचती है 8 मिनट में, तो हमारे प्लैंट्स इसको कैप्चर करते हैं, उसको पैकेजेस लेते हैं फूड का, और वो हम खाते हैं और हमें ताकत आती है। तो हम जो चलते फिरते हैं, ये जो काम करते हैं, ये वो न्यूक्लियस के अंदर जो पावर है, जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, वो हम तक पहुंचती है। तो ये स्ट्रक्चर है, हर एटम का स्ट्रक्चर होता है। अब कार्बन के एटम में आप देखेंगे 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन का पहला एटम है, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, ये बेसिक है। और राइट हैंड पे जो है वो यूरेनियम का है, उसके अंदर 92 प्रोटॉन और 150 के करीब 136 के करीब न्यूट्रॉन, और इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन 92 घूम रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं एटॉमिक बम जो होता है वो इसको तोड़ते हैं यूरेनियम के एलिमेंट को, और इसके अंदर से न्यूक्लियस से जो पावर खारिज होती है वो तबाहियां बचा देती है सारी एनर्जी इवेंचुअली। तो ये है वो स्ट्रक्चर एक एटम का, एक ब्रिक का, जो कि कायनात को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई है। अल्लाह ताला ने इसके डिजाइन को ऐसे बनाया और हर चीज इससे बनी है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं इसके अंदर जाके कि ये ब्रिक जो है ये है क्या। डायमंड आप देखें, ऊपर डायमंड दिया हुआ है, और डायमंड जो है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं राइट हैंड साइड पे, एक लेयर हटाया, फिर दूसरा लेयर हटाया तो अंदर हमें एटम नजर आया। एटम के अंदर 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, उसके 6 इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से एटम नजर आया। उससे लेयर हटाया तो हमें न्यूक्लियस नजर आया। न्यूक्लियस से फर्दर लेयर हटाया, उसके और नीचे से झांका तो हमें क्वार्क प्रोटॉन नजर आया। प्रोटॉन को फर्दर एक्सप्लोर किया, क्वार्क नजर आया। क्वार्क को फर्दर एक्सप्लोर किया तो एनर्जी की स्ट्रेंथ नजर आया। तो यहाँ जाके हमें पता चला कि ये एनर्जी जो है ये यहाँ पे है, और स्पेस के अंदर इसने हर चीज का, कायनात की हर चीज का ये पार्ट है, एवरीथिंग, ये एनर्जी। एक आयत है कि यसलू मन समावात में फिल अर्द, जमीन और आसमान के अंदर जो कुछ चीज है वो अल्लाह की जात पे डिपेंडेंट है। कुल्लु यौमिन हुवा फी शान, हर आन अल्लाह ताला एक नई शान के साथ आते हैं। तो ये जो डिपेंडेंट है, ये मेरी डिस्कशन हुई एनर्जी डिपार्टमेंट के हेड है उनसे, तो उन्होंने कहा यू आर राइट, ये स्ट्रक्चर जो प्रोटॉन का है उसके अंदर जाके उसके अंदर और उसको मेंटेन कर रही है हर नैनो सेकंड, और वो मेंटेन कर पूरा अगर हम हटा दें प्रोटॉन खत्म हो जाए, न्यूट्रॉन खत्म हो जाए। अब इसमें भी आपको सवाल कई होंगे, आप नोट करते जाइएगा, इसके बाद हम आप आगे बढ़ते हैं। ये सूरज का स्ट्रक्चर है, ये आप अलग इंजीनियरिंग आप देखें। सूरज सबसे पहले हाइड्रोजन वो खत्म होती है तो हेलियम उसकी जगह जलना शुरू हो जाती है। जब हेलियम खत्म होती है तो उसके बाद हाइड्रोजन, हेलियम, ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सिलिकॉन वगैरह, जब आखिर में ये सब एनर्जी दे रहे हैं सूरज के मेंटेन करने के लिए, स्टार को मेंटेन करने के लिए,
لیکن جب لوہا بننا شروع ہو جاتا ہے تو وہ ایبزارب کرتا ہے انرجی، اور یکدم ایبزارب کرنا شروع ہو جاتا ہے تو ملینز مائلز ایک لوہا جمع ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر اتنی گریوٹی پیدا ہوتی ہے کہ سورج کولیپس ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہبل ٹیلیسکوپ کے ذریعے ہر روز سورج کولیپس ہوتا دیکھتے ہیں، حالانکہ ایک گیلیکسی میں 100 سال میں سورج کولیپس ہوتا ہے، لیکن اتنی زیادہ گیلیکسیز ہیں کہ ان کو کوئی نہ کوئی نظر آ جاتا ہے۔ اس میں کچھ اسٹینڈرڈ کینڈلز بھی ہیں جو کہ جن کی روشنی انہیں بتاتی ہے کہ ڈسٹینس کتنا ہے زمین سے وہاں تک۔ روشنی سائنسدانوں کے سامنے speaks and tells a lot of stories کہ وہاں پہ کتنا تانبا پیدا ہو چکا ہے، کتنا پانی ہے، کتنا کون کون سی گیسز ہیں، a lot of stories۔ تو سورج کا یہ اسٹرکچر ہے، سورج جو کینڈلز ہیں اور ان کے اندر سے روشنی نکلتی ہے تو ان کی ایک لائف ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہ بگ ویلز جسے ہم گیلیکسی کہتے ہیں، گیلیکسیز میں تھوڑا سا مادہ ہوتا ہے ہمارا جو ہم دیکھ سکتے ہیں، زیادہ تر ڈارک میٹر ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گھوم رہی ہے، مطلب سب اسٹارز گھوم رہے ہیں، اور ہمارا سورج ایک کونے پہ ادھر ہے جو کہ 25,000 لائٹ ایئرز فرام سینٹر آف دا گیلیکسی ہے۔ ہم جو آسمان پہ اسٹارز دیکھتے ہیں دیٹ از جسٹ 5% آف اور گیلیکسی، باقی سارے جو ہے وہ موجود ہے اور یہ گھوم رہے ہیں۔ والسماء ذات الرجع، اب بتائیں یہ قرآن پاک کا ترجمہ کس طرح کر سکتے ہوں گے وہ لوگ جو ابھی کنور صاحب بتا رہے تھے کہ مشکلات پیش آتی رہی ہیں ہمارے لوگوں کو۔ تو اب جا کے سائنس تخلیق ایکسپلین کر رہی ہے، سائنس نے تخلیق کہ حقیقت کیا ہے، ورنہ پہلے مشابہات تھے۔ تو یہ بگ ویلز ہیں اور یہ سورج بلین سورج ہوتے ہیں، درمیان میں بلیک ہول ہوتا ہے عام طور پہ۔ بلیک ہول کیا ہوتا ہے جس سے فردر ٹیکنیکل تھنگ تو کسی اور خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، ساری چیزیں گھوم پھر رہی ہیں، باہر نہیں جاتی ہیں، اسٹرکچر آپ دیکھیں، ڈیزائن دیکھیں، لیکن بندھی ہوئی ہیں جیسے سولر سسٹم ہے۔ یہ ارتھ 5 بلین ایئر سے اس کے گرد گھوم رہی ہے، ہٹتی رہی ہے، اور ڈسٹینس کتنا جس میں پانی لیکوڈ ٹھہر سکے، اور اگر یہ اتنا نہیں کرتی تو لائف پیدا نہ ہو پاتی۔ لائف کو ایولیوشن کو 3.5 ارب سال لگے ہیں آدم بنتے بنتے، کنسٹرکٹ بنتے بنتے، تو یہ اس دائرے سے، اس گولڈن لاف زون سے باہر نہیں جا رہی۔ اگر 5% ادھر ہوتی ہے ہر چیز فریز ہو جاتی ہے، مارس میں ہر چیز فروزن ہے۔ اگر 1% قریب ہوتی ہے سمندر بوائل ہو جاتے ہیں، پانی نہیں ہے، ختم لائف۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے وہ رسے جنہوں نے جکڑ کے رکھا ہے ہر چیز کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو، چیلنج کر دیا سورہ الملک میں، کوئی رکھنا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نیچرل لاز جسے اللہ کی مرضی ہم کہتے ہیں، کوئی چیز ان کو ڈیویٹ نہیں کر سکتی، نہ ڈیویٹ نہ کرتی، کوئی چیز موافق الفطرت نہیں ہوتی۔ ہاں کچھ چیزیں ہیں جو ڈائریکٹ انٹرونشن ہیں یا قانون مشیت کے تحت ہوئی ہیں، پاسٹ میں ہوئی ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہم ریپیٹ نہیں کر سکتے، we don't talk about it، لیکن فیوچر میں کبھی نہیں ہوگا۔ اور باقی جو ہو رہی ہیں ہمارے سامنے وہ نون ہے، جیسے کائنات کا پیدا ہو جانا، فنڈامنٹل فورسز کا پیدا ہو جانا، قوانین فطرت کا مینٹین ہونا، انسان کا پہلا سیل بننا، انسان میں روح کا آنا، یہ ڈائریکٹ انٹرونشن، ان میں کاز نہیں ہے۔ کاز ہے تو ہم اس کو وہ سائنس کے اس میں آ جاتی ہے، جن میں کاز نہیں ہے وہ مشیت کے قانون ہے۔ ایک تیسرا قانون بھی ہے، تیسری کرنٹ کے جسے مقافات عمل کرتے ہیں، قرآن پاک میں دیا ہوا ہے، وہ نیچر میں نہیں ہے۔ مقافات عمل بھی قانون مہلت، یہ انسان پہ وہ کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، کہ زمین جو ہے اللہ نے بنائی with strong structure، اور یہ equilibrium کنڈیشن میں ہے، لیکن ہم گر نہیں رہے، ہمیں لگتا ہے بالکل ٹھہرے ہوئے۔ ڈیزائن دیکھیں اللہ، سبحان اللہ، زمین سپن کر رہی ہے 1670 کلومیٹر پر آور، سپن کر رہی ہے، اور سورج کے گرد 107,200 کلومیٹر پر آور کے حساب سے سورج کے گرد جا رہی ہے، ویری ہائی
हाई स्पीड, और सूरज जो है वो गैलेक्सी के गिर्द घूम रहा है 72,000 किलोमीटर पर आवर के साथ, और हमारा मिल्की वे जो है वो उस स्पीड ऑफ मिल्की वे टू अदर गैलेक्सी 483,000 किलोमीटर पर आवर, और हमारे जो गैलेक्सी का एक मजमूआ है वो किसी तरफ जा रहा है 2.15 मिलियन किलोमीटर पर आवर के साथ। अब आप इमेजिन करें कि हर चीज किस कदर हरकत में है। अब इस आयत का तर्जुमा पहले कौन कर सकता था? कोई भी आला तो कहता है जमीन साकत है, आपने फेसबुक में उनका देखा हो। लेकिन इस आयत का आप देखें कि ये क्विवरिंग कंडीशन में है, मुसलसल है, लेकिन हम बिल्कुल ठहरे हुए, गिलास पानी का रखते हैं गिरते ही। ये खुदा के डिजाइन है, हर चीज जकड़ी हुई है उसके पैरामीटर्स के अंदर। तो हमने अभी डिस्कस किया स्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग। अभी हमने ये नहीं देखा कि मूवर कौन है, लेबरर कौन है, कैसे हरकत करती है। अब इस थर्ड डिजाइन के फेस पे आते हैं कि अल्लाह का वो निजाम क्या है, और मुदब्बिरात अमरा, जहाँ पे काम हो रहे हैं, जहाँ पे लेबर है, जहाँ पे मूवमेंट हो रही है, जहाँ पे अल्लाह चैलेंज करता है कि कोई रखना है तो मुझे बताओ, कहीं पे आपको कोई चीज नजर आती है मुझे बताओ। तो वो एग्जीक्यूशन ऑफ कमांड्स, ये डिजाइन का तीसरा फेस। इसमें सबसे पहला मैं डिस्कस करूंगा मूवर्स एंड शेकर अल मलाइका, फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद सेकंड में आऊंगा पैरामीटर्स एंड प्रोसीजर्स लिकुल्ली शैइन कदरा, नेचुरल लॉस, यानी ये फोर्सेस के लिए तरीकेकार है कि आपने यूं करना है। प्रोसीजर मैनुअल जिसे हम कहेंगे ना कि प्रोसीजर मैनुअल क्या है, जिसको कोई डिबेट कर ही नहीं सकता। पत्ता गिरता है उसमें नीचे गिरना है, समंदर की लहर हो, रोशनी की किरणें हो, कोई चीज हो, कायदे के मुताबिक उसको वो उन्हें कहते हैं पैरामीटर्स, नेचुरल लॉस, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की इशा। उसके बाद अल्लाह की एक टेक्निक है मास एंड वेट कैसे पैदा होता है, तो ये भी थोड़ा सा टच करेंगे। और आखिर में देखेंगे कंट्रोल्स एंड लिमिट्स क्या है। अब जाहिर है हर चीज अनकंट्रोल नहीं है। यहां पे लिकाए रब्बिहिम, अल्लाह ताला की नजर आते हैं फुटप्रिंट्स। तो ये एग्जीक्यूशन एंड कमांड्स में आप देखेंगे। और आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कॉन्शियसनेस ना होती, ये साइंस के लॉस तो वरना तो कुछ और बताते हैं, कुछ हम बन ही ना पाते। लेकिन ये कॉन्शियसनेस गाइड उंगली पकड़ के जिस तरह कायनात को बना के चलाया है, वो आखिर में जाके लिखेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन अब हम डिस्कस करते हैं एग्जीक्यूशन एंड कमांड्स का क्या डिजाइन क्या है। पहले मलाइका क्या है। मलाइका के दो रूप्स हैं, मलक जिसमें दैट पोजेसेस द पावर, और सेकंड है अलक जिसके दो मीनिंग निकलते हैं, मैसेंजर एंड फोर्स। फरिश्ता जो है ये तर्जुमा नहीं है मलाइका का, इसमें और कांसेप्ट आ जाता है एंजल का। तो ये थोड़ा सा डिबेट, इसको अगर हम सिर्फ मलाइका के हद तक रखें तो मैसेंजर भी उसमें है और फोर्स भी उसमें है। तो वैसे तो बेशुमार फोर्सेस हैं, लेकिन अल्लाह ताला एक जगह फरमाते हैं कि 8 मलाइका उसके अथॉरिटी को, अर्श को उठाए हुए होंगे। 8 यानी 8 फंडामेंटल फोर्सेस हैं जो इस मुदब्बिरात अमरा यानी इस कायनात की सिस्टम को सस्टेन किए हुए हैं। अभी तक साइंस ने सिर्फ 4 दरियाफ्त किए हैं, 5वीं को डार्क एनर्जी कहता है, और ये कैटेगरी भी इंसानी है। तो लेकिन अल्लाह की कैटेगरी क्या क्या है वो अभी टाइम्स टू कम इंसान डिस्कवर करेगा। लेकिन मूवर्स एंड शेकर्स फंडामेंटल फोर्सेस हैं, और जब ये कायनात तख्लीक हुई तो उसके एक खरब में हिस्से के अंदर ये कुव्वतें पैदा हो गई। मलाइका की जो कुव्वतें हैं इनकी क्रिएशन भी पहला सेकंड जो है उसे अगर हम एक सदी का कहें, जिसमें कायनात पैदा हो रही है, तो इनका ज़ुहूर भी पहले चंद दिनों के अंदर ही हो गया। और उसके लॉ भी, नेचुरल लॉ को हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले ये कि मलाइका जो हैं
اچھا ملائکہ کا کام اور بھی ہوتا ہے، میں نے بتایا بے شمار بہت سے ہوں گے، لیکن آج اس کو سسٹین کیا اور بھی میں نے یہ دیا ہے والملک علی ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانیہ، 8 ملائکہ اللہ کے عرش کو اس دن اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تو جو ہم نے 4 ڈسکور کیے ہیں وہ گریویٹی، الیکٹرو میگنیٹک، یہ بجلی، اس کو لا کو ہم نے جہاز میں ڈالا 700 آدمی کو لے کے چلا گیا، جی پی ایس میں ڈالا سلیکان بولنے لگ گیا، ٹی وی میں ڈالا اس نے 1 سیکنڈ میں 60 فریم بنا کے ہمیں پکچر دکھانا شروع کر دی۔ یہ وہ الیکٹرو میگنیٹک کے کمال، ہمارا جسم اسی سے چلتا ہے، ہم اسی سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور اسی نے ہمیں باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ اگر یہ 1 سیکنڈ کے لیے موقوف ہو جائے، ہم ڈسینڈلی گریڈ ہو جائے، ڈسٹ بن جائے۔ اس کے بعد اسٹرانگ فورس جو ہماری نظروں سے ہو جائے، جو بالکل اندر ہوتی ہے نیوکلیس کی، اور اس کے بعد ویک فورس جو اس سے ریڈیشن ہوتی ہیں، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو یہ انسان نے ڈسکور کر لیے ہے، ڈارک انرجی کو پتہ چل گیا ہے اور گریویٹی نے بتایا کہ وہ ہے، لیکن اس کو ابھی پوری طرح ڈسکور نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد پروسیجرز کیا ہے فنڈامنٹل فورسز کی، یہ تو بن گئی، اب انہوں نے کس طریقے سے عمل کیا، اب دیکھیں ڈیزائن خدا کا۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ بالغ الامر قد جعل اللہ لكل شيء قدرا، God's law is dominant to accomplish the purpose، یعنی کہ ان کے اندر لا آف کمپلشن ہے، انگلش میں کہتے ہیں، یعنی ان کے اندر ہی طاقت امپلیمنٹیشن کی ہوتی ہے، جو کچھ انہوں نے کرنا ان کے اندر قوت ہے نیچرل لاس کی۔ God has devised measures and for everything، ہر چیز اللہ کل شیء قدیر۔ اب آپ دیکھیں ترجموں میں، پہلے ہم کرتے تھے ترجمہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا، کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور اللہ چاہے تو ما فوق الفطرت چیزیں ہو سکتی ہیں، اکرامات، یہ چیزیں، اور وہ ادھر سے کوئی آواز آئی اور پتھر بول پڑا، یہ چیزیں، تو اس میں اللہ کی پاور ظاہر ہوتی تھی۔ بادل پہ محمد نام لکھا ہوا آ گیا ہے۔ اب سائنس کے بعد سکہ الٹا ہو گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ نے ہر چیز کو اپنے پیرامیٹر میں جگہ رکھا ہے، اور جو اس نے خود بنائے ہیں، تو یہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اللہ کے طریقے چینج نہیں ہوتے، لا مبدل لکلمات اللہ۔ اب یہ سپر لاس چینج نہیں ہوتے، نہیں ڈیبیٹ ہوتے، اور نہیں اللہ کوئی ربر پینسل یہ بیٹھا ہے کہ آج یہ چاہ پھر یہ، وہ نہیں ہوتا۔ تو اور ان کے اندر طاقت ہوتی ہے، آپ دیکھیں سورج ہے وہ پھٹ جائے گا، لیکن اللہ کا لا ڈیویٹ نہیں ہوگا۔ زمین پھٹ جا سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، زمین کے زلزلے آ سکتے ہیں، پلیٹس موو ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کا لا نہیں ٹوٹتا۔ اس کی 4 خصوصیات ہیں جو کہ قرآن پاک میں مختلف آیات کی فارم میں دی گئی ہیں، تو میں خصوصیات آپ کو بتاتا ہوں، اس کے بعد کوسچن۔ تو پہلے یہ ہے کہ یہ یونیورسل ہوتے ہیں، یعنی ہر جگہ ہے، یہاں بھی ہے، اور ہم نے پیپ کیا ہے 13 بلین لائٹ ایئرز اوے، تو وہاں 13 ارب سال پہلے بھی یہی لاس تھے اور یہی ہولڈ کرتے ہیں، انڈیپینڈنٹ اینڈ سیلف پاورڈ، ان کے اندر طاقت ہوتی ہے امپلیمنٹیشنز کی، ایٹرنل، جب سے کائنات بنی ہے اور جب تک اینڈ ہوگا یہ لاز آف نیچر رہیں گے، ڈومیننٹ آن آل، ہر چیز پہ غالب آ جاتے ہیں۔ تو اس کی آیات قرآن پاک سے میں نے دی ہوئی ہیں، تو یہ یعنی کہ اللہ کے ڈیزائن کا حصہ ہے نیچرل لاز۔ اور انٹرسٹنگ چیز ایک جو میں آپ کو بتاؤں کہ رچرڈ ڈاکن سب سے بڑا ایتھیسٹ ہے، یہ گیا اسٹیو وائنبرگ کے پاس جو اس وقت زندہ سب سے بڑا سائنٹسٹ ہے، جس نے کو نوبل پرائز ملا تھا۔ اب یہ دونوں ڈسکس کر رہے ہیں اور دونوں ایتھیسٹ ہیں۔ ایک جگہ جا کے وہ پوچھتا ہے کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ نیچرل لا سٹینڈ کیوں کرتے ہیں؟ اسٹیو ہاکنگ بھی یہ کہتے ہیں کیوں سٹینڈ کرتے ہیں ہر لمحہ ہر جگہ؟ تو
स्टीव वाइनबर्ग ने कहा कि अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट नोएबल टू द ह्यूमन एंड ह्यूमन विल नेवर नो अबाउट इट कि इनका ओरिजिन क्या है, इनके पीछे कौन सी ताकत इनको इम्प्लीमेंटेशन दे रही है। तो ये डिस्कस हो रही थी, तो फिर स्टीव वाइनबर्ग से पूछते तुम कुछ मुतदल्ला तो नहीं हो रहे? और ये कुछ 5 मिनट का सेगमेंट था उस पूरे 1.25 घंटे के इंटरव्यू में, तो ये मैंने देखा, ये शुरू की बात। उसके बाद फिर मुझे ये मैंने कहा दोस्तों को भेजता हूँ कुछ ऐसा बात, तो देखा तो पूरे यूट्यूब और सब जगह मुझे ये ऐसा नजर नहीं आया। फिर मैंने स्टीव वाइनबर्ग को लिखा कि मुझे आपको ओरिजिनल इंटरव्यू कहाँ से मिल सकता है? तो मैंने कहा वो BBC ने बनाए थे और वो आप उनसे दरियाफ्त करें तो वो दे सकते हैं, मेरे पास अभी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ एथिस्ट की जान जाती है कि वो बयान नहीं कर सकते कि ये कहाँ पे है, इनका ओरिजिन कौन है, क्यों स्टैंड करते हैं, ये अल्लाह की मर्जी। फंडामेंटल फोर्सेस क्या है, एनर्जी क्या है, कि डिस्कशन हो गई। तो एनर्जी की क्वालिटीज तो वो सब बता देते हैं, लेकिन व्हाई इट इज फंडामेंटल फोर्स है क्या और क्यों है, इसका कोई नहीं बता पाता। तो दैट इज वेयर द गॉड कम्स, लिकाए और अल्लाह ताला को आमने सामने पाते हैं। अच्छा, इसके बाद आप ये देखेंगे वसखर लकुमुल लैला वन्नहार वश्शम्स वल्क़मर वन्नुजूम मुसख़्ख़रात बिअम्रिही इल्ला फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून। अकल वालों के लिए निशानियां हैं, पूरी कायनात इन्हीं कवानीन से चल रही है। अच्छा, कवानीन 2 तरह की याद रखिएगा कि कुरान पाक इज एब्सोल्यूट वर्ड ऑफ गॉड, एब्सोल्यूट ट्रुथ। साइंस में तख्लीक जो है, जिसे हम ओंटोलॉजी कहेंगे, एज इट जो रियल में है, वो अल्लाह का काम है। साइंस के जरिए हमने उन्हें जो समझा है उनके अंदर खामियां हो सकती हैं, लेकिन जो रियल वर्ड दे आर उनके अंदर कोई खामी नहीं है, सोर्स एक है और कुरान पाक को वो यूं सपोर्ट कर रहे हैं। फिजिक्स के लॉज में कुछ जो फर्म हो चुके हैं वो कुरान पाक की तस्दीक कर रहे हैं। जो थ्योरीज हैं उनको हम रिलेट कर सकते हैं, हो सकता है उनके अंदर कोई चेंज आए, लेकिन रियल अल्लाह के कवानीन में वो कभी तब्दील नहीं है और उसी से ये दुनिया कायम है। इसके बाद थर्ड एलिमेंट था कि अल्लाह ताला वेट और मास किस तरह बनाता है। तो वेट इन वन सेंटेंस ऐसे बनता है कि कायनात के अंदर कोई भारी चीज से प्रोटॉन रखें तो कर्व पैदा होता है, और भारी चीज को जैसे हम हैं, जमीन है और हम हैं, तो ऊपर से पुश कर रही है कायनात की जो लेयर्स हैं, ये मेम्ब्रेन है, तो उससे वेट पैदा होता है। तो जब हम लिफ्ट के जरिए जल्दी से नीचे जाते हैं, अगर जमीन पुश कर रही थी, खींच रही होती ना, फिर तो ये था कि हम खुद को हल्का फील ना करते, लेकिन क्योंकि ऊपर से पुश हो रही है तो हम हल्का फील करते हैं, जैसे थोड़े से हमारा वजन कम हो गया। ये जहाज के अंदर जाए वो एकदम नीचे आए तो हमारा वजन खत्म हो जाता है। तो वजन तो का मैकेनिज्म ये है कि कायनात ऊपर से है, जमीन जो है सूरज के इर्द गिर्द कर्व कर रही है, ये कर्व के अंदर है, दूर नहीं जाती। ये आइंस्टाइन की डिस्कवरी है। इसके बाद मास कैसे पैदा होता है, हिग्स फील्ड इन्होंने थ्योराइज किया था और इसका सबूत 2-3 साल पहले इनको मिल गया। तो वो एक जिसे कहते हैं ना शहर या इस तरह का कोई चीज हो और उसके अंदर कोई बॉल छोड़कर रेजिस्ट करता है, एक फील्ड है जो उस तरह से तो रेजिस्ट नहीं करता, एक दफे मोमेंटम दें तो रेजिस्ट करेगा और उसके बाद फिर उस मोमेंटम को कायम रखेगा, रुकेगा नहीं, तो उसे मास कहते हैं। तो ये एक मास का मैकेनिज्म है जो थोड़ा सा टेक्निकल है, तो ये शायद आपको समझ ना आए, लेकिन हमारे यहाँ एक फील्ड है, मतलब इसके अंदर जिस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह हिग्स का फील्ड है। तो हिग्स का फील्ड मास क्रिएट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का फील्ड तो हमारे लोग यूज कर रहे होते हैं, ग्रेविटेशनल हमारे ऊपर मुतासिर हो रहा होता है, हम उसी की वजह से जमीन पर ठहरे हुए हैं। तो अब चौथा एलिमेंट डिजाइन का जो था ना, मूविंग एंड शेकिंग का, वो था कि अब इनके कोई कंट्रोल और लिमिट्स भी हैं या नहीं। तो आप देखें अल्लाह ने कैसे बनाया। अल्लाह ने एक तो लॉ बनाया, मीज़ान कायम किया, बस समा इरफा वदअल मीज़ान,
اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا اس کے اندر دس از اکول ٹو دس رکھ دیا, کاز از اکول ٹو افیکٹ رکھ دیا. اللہ تعالیٰ تو اب اس میزان کو کوئی گڑبڑ کر نہیں سکتا. میتھمیٹک کی لینگویج یہی ہے, دس از اکول ٹو دس. تو لا آف کاز اینڈ افیکٹ ہے, لا آف ڈیڈس ہے جسے مقافات عمل کہتے ہیں. تو یہ کائنات کے میں ایک میزان ہے, ایک کنٹرولنگ فیکٹر ہے. اور اس کے بعد ایک انٹرسٹنگ چیز, اور وہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ پوری کائنات میں ایک ایٹم نہ ہم غائب کر سکتے ہیں نہ اور کریٹ کر کے جمع کر سکتے ہیں. پوری یونیورس میں چارج الیکٹرک کا پلس اور مائنس ہوتا ہے, ان دونوں اینائلیٹ تو ہو جائیں لیکن اس کو آپ غائب نہیں کر سکتے. پوری کائنات میں آپ سے غائب نہیں کر سکتے. ایسے نہیں کر سکتے کہ جو نیگیٹو ہے اس کو آپ چھپا دیں اور پازیٹیو رہ جائے. اس کے بعد سپن ہے, سپن الیکٹران کا ہوتا ہے اور وہ ایک بہت ہی چھوٹا ایلیمنٹ ہے, تو وہ بھی ختم نہیں ہوتا لیکن وہ تھوڑا سا زیادہ ٹیکنیکل ہے, بہت ہی لو لیول میننگ اسمال لیول. ایک اور کنزرویشن آف چینج مومنٹم, جیسے کوئی چیز جا رہی ہے تو اس کو مومنٹم ہوتا ہے, گاڑی جا رہی ہے اسے روکنے کے لیے آپ بریک لگاتے ہیں تو وہ مومنٹم زمین پہ شفٹ ہو جاتا ہے, ختم نہیں ہوتا. ایک گاڑی ادھر سے آئی ایک ادھر سے آئی, دو ٹکرائیں تو ایک دوسرے کو کینسل کر دیا پازیٹیو ماس, لیکن ٹوٹل اور ختم نہیں ہوا. تو مومنٹم از ایک کنزرویشن, اس کو کوئی ختم اس طرح سے یہ نہیں ہوتا, کنزرو ہے. اس طرح چار اور ہیں ادھر ٹیکنیکل ہے. تو یہ کنزروڈ کوانٹیٹیز ان دس یونیورس ہیں جس سے پھر ہم میتھمیٹکس کی ایکویشن بنتی ہیں کہ دس مسٹ بی از اکول ٹو دس, ای مسٹ بی از اکول ٹو ایم سی اسکوائر. تو یہ ساری ایکویشن پھر کنزرویشن سے بنتی ہیں. تو یہ ڈیزائن کا ایک بہت ہی سٹل پارٹ ہے جو اللہ نے بنایا ہے. تو دیٹس ویری انٹرسٹنگ پارٹ ہے اس میں. اچھا, اب کریٹیکل پارٹ, اس سے کاسمولوجیکل سائنس کی دنیا میں کاسمولوجیکل انٹروپک کاسمولوجیکل پرنسپل کہتے ہیں کہ انسان میں بننا تھا تو کائنات بنی. فیزیولوجیکل پرنسپل بھی اسے کہتے ہیں. تو یہ اللہ کے ڈیزائن کے خاص حصہ ہے. جیسے الیکٹران کا ماس ہے یا پروٹون کا ماس, یہ چارج یا اسٹرینتھ ہے اسٹرانگ نیوکلیئر فورس کی. نیوٹران کا ماس اسٹرینتھ آف الیکٹرو میگنیٹک فورس, اسٹرینتھ آف گریویٹی. یہ جتنی کانسٹنٹس ہیں آپ تھوڑا سا ادھر سے ادھر ہوں تو آسمان و زمین نہ بنتے یا انسان نہ بنتے. تو میں اسے سائنس کی لینگویج میں اپنی لینگویج میں پلسرات کہتا ہوں. اور درمیان میں ایک ایسی چیز بھی آتی ہے جسے فائن ٹیوننگ آف دا یونیورس کہتے ہیں کہ زمین کے جتنے ذرے ہیں ان میں سے ایک ذرہ بھی مسنگ ہوتا تو اس فائن ٹیون کا توازن جو ہے, یعنی میں ریشو بتا رہا ہوں کہ جتنے ذرے 10 raised to the power of 26 سائز زمین کے جتنے ذرے ہیں, ویسے تو 10 raised to the power of 120 تک آتی ہے سائنس آف فائن ٹیوننگ کو کرتی ہے, لیکن میں اسے زمین کے ذروں سے مثال دینا تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ ایک نصف سائز زمین کے ذرے اور ایک ذرہ بھی غائب ہو تو ہم نہ بن پائیں. ایکسپینڈ ہو رہی ہے ہلکے ہلکے یا تیزی سے ایکسپینڈ ہونا شروع ہو جائے تو پھر سورج چاند ستارے نہ بن پائیں. اور اگر زیادہ ہو فورس یا فورس کم ہو تو کولیپس ہونا شروع ہو جائے تو پھر زمین کولیپس ہو جائے سارے, مطلب ہے کیکشاں اور یہ چیزیں تب بھی نہ بن پائیں. تو وہ فائن ٹیوننگ اتنی ہوئی ہے اس کی جو کہ کسی اسٹیون ہاکنگ جو ہے وہ کہتا تھا کہ یہ is not sort of thing which we can understand. حالانکہ وہ یہ چیز تھا, لیکن یہ پوائنٹ ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز بنی ہوئی نظر آتی ہے اور یہ اللہ کی پوائنٹ ٹیوننگ ہے. تو کیا کائنات ہلکے ہلکے پھیل رہی ہے, اگر زیادہ تیزی سے پھیلتی
तो सूरज को बनने का मौका न मिलता, और अगर कम होती तो ये कोलैप्स हो जाती। आपस में वहां जहां से शुरू हुई थी। अच्छा, उसके बाद आप देखें डार्क मैटर है। डार्क मैटर अगर ना हो तो ये जो गैलेक्सी हमने बिग व्हील देखा था, ये घूम रहा है ना, तो ये स्कैटर हो जाए। तो डार्क मैटर है तो इसमें सब सारे व्हील को प्रॉपर रखा हुआ है, और व्हील बाहर से और अंदर से एक स्पीड, एक तवाज़ुन के साथ। ये नहीं है कि करीब के सूरज जल्दी जल्दी घूम रहे हैं और दूर के जो गैलेक्सी के सूरज हैं वो देर से घूम रहे हैं, नहीं, उन्हें बांध के रखा हुआ है डार्क मैटर ने। और हमें पता नहीं कि वो डार्क मैटर है क्या, लेकिन हमें ग्रेविटी बताती है कि है समथिंग। एक हाथी खड़ा है इस कमरे में, नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसके असरात बता रहे हैं कि देयर इज एन एलिमेंट इन द रूम। तो यहाँ खुदा की सच्चाई जो है, ये डिजाइन की पार्ट जो है, ये आम आदमी की नजर से नहीं गुजरते, लेकिन जो उनके उलुल अलबाब होते हैं, जो खड़े लेटे बैठे और वो फिक्र करते रहते हैं तखलीक पे, और पुकार उठते हैं, वमा खलक़ता हाज़ा बातिला, ऐ अल्लाह तुमने चीजों को बातिल पैदा नहीं किया। तो ये वो रास्ता है कि इधर उधर जरा दी जाए तो हम ना। मैंने कुछ पॉइंट तो दिए हैं, 30-40 पॉइंट्स हैं इसके, और कुछ तकलीफ से रिलेटेड हैं जो मैंने इसमें नहीं दिए। तो लेकिन जमीन का मैं मिसाल देता हूँ। जमीन का डिस्टेंस 93 मिलियन माइल्स है। थोड़ा इधर उधर होता फ्रीज हो जाती है, बॉयल हो जाती है, समझना आज जिंदगी ना होती। फिर चांद है, उसका भी एक रोल है जिससे खुश्की पैदा हुई, और जमीन का वो समंदर जो है उनका स्ट्रक्चर बनाने में, और फिर जमीन की टिल्ट है जिससे वेदर होते हैं। तो बहुत से फैक्टर्स हैं। फिर जमीन का, सूरज की लाइफ और इतना अर्सा घूमते रहना, ये सारी की सारी चीजें किस तरफ ले जा रही हैं कि इंसान ने पैदा बना था। तो इंसान जो है ये फाइनल प्रोडक्ट है ऑफ द यूनिवर्स। और भी मखलूक होगी, हो सकता है इंसान से एडवांस हो, लेकिन हमारे नॉलेज में चूंकि नहीं है तो हम अभी इसको आदम तक महदूद रखते हैं कि आदम फाइनल प्रोडक्ट है। अच्छा, अब डिजाइन के बाकी एस्पेक्ट हमने कवर जो किए, वो इंग्रेडिएंट, स्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग और मूविंग एंड ऑपरेटर्स, और फाइनल में हम फाइनल प्रोडक्ट की सिर्फ एक स्लाइड में दूंगा कि अब राइट हैंड साइड पे एक जो रोशनी नजर आ रही है, आखिर उस वक्त कायनात पैदा हुई, उसके बाद उसकी लाइफ टाइम लाइन देखें, 1 बिलियन ईयर, 1.5 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन, 4। अब नीचे आयत दी हुई है, वस्समाए वत्तारिक, अल्लाह ताला आसमानों को और तारिक को शहादत के लिए पेश करता है, एविडेंस के लिए पेश करते हैं। किसको पेश किया जा रहा है? आदम को, हमारे सामने। वमादरा कमा तारिक, आपको क्या मालूम कि तारिक क्या है? और बाकी उस जमाने में तो बिल्कुल मालूम नहीं था कि तारिक क्या चीज है। एक ऐसे स्टार जिसकी रोशनी बहुत दूर से और बहुत तेजी से आती है हमारी तरफ, वो किस चीज की शहादत दे रहा है? अब आप तर्जुमा देख लीजिए। यहाँ पहले लोग इसका तर्जुमा कर ही नहीं पाते थे, नामुमकिन था, तो ये मुतशाबिहात में थी बात। अब आप देखें कि वो शहादत दे रहा है, इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज, हर आदमी के ऊपर एक निगरान मुकर्रर है जो रिकॉर्ड कर रहा है उसके व्हाट ही इज डूइंग। अब आप देखें अबल टेलीस्कोप में कि इंसान जो है कायनात को बने हुए 14.25 अरब साल में, और इंसान जहां तक देख सकता है, दुखान एक स्टेज है कायनात के पैदा होने के, सेकंड स्टेज दुखान है। पहले कुन फयकुन, उसके बाद दुखान, उसके बाद फिर बाकी स्टेज। तो जब पहली गैलेक्सी बनी 13.2 बिलियन लाइट ईयर अगो, वहां पे जाके जब इंसान का फोटॉन चला हुआ हबल टेलीस्कोप के जरिए हमारी आंख से टकराता है, तो वो क्या कहानियां बता रहा है, और हर स्टेज पे इंसान देख रहा है। और क्वाइज़र बता रहे हैं, क्वाइज़र क्या होता है? ये यूं समझे एक ब्लैक होल होता है सेंटर ऑफ द गैलेक्सी में, और जब ये बन रहा है तो उस वक्त इसके दोनों साइड से एनर्जी निकल भी रही होती है जो अंदर अब्जॉर्ब नहीं हो पाती, बाहर खारिज हो रही होती है। क्योंकि बाद औकात जो विकिपीडिया में आप देखें कि एक क्वाइज़र या ब्लैक होल 1 मिनट में 6 जमीनें खा रहा है,
یعنی اس کے اندر گر رہی ہیں، اتنی کوانٹٹی کا میٹر جا رہا ہے اور وہ انرجی میں کنورٹ ہوگا تو وہ الاؤ روشن ہوتا ہے، پوری گیلیکسی کو اس میں روشن کرنا ہوتا ہے. اور یہ ہم کناروں پہ ہی دیکھ سکتے ہیں. 5 بلین لائٹ ایئرز اوے، 10 بلین، 8 بلین، 11 بلین، 12 بلین لائٹ ایئر اوے، وہاں سے روشنی آ کے ہمیں شہادت دے رہی ہے. اور لائیو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کائنات اپنے انٹیلیجنٹ آبزرور کو دکھا رہی ہے کہ میں کیا ہوں. شروع سے دیکھو، سائنسدان تو کہتے ہیں نا کہ انٹیلیجنٹ آبزرور کو یہ دکھا رہی ہے، لیکن میں کہتا ہوں شروع سے دکھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ شہادت ہے اس کی. اور لائیو کیا سورج بن رہا ہے کہ سورج اگنائٹ ہو چکا ہے، ابھی زمینیں نہیں بنی ہیں، وہاں بلیک ہے، یعنی ابھی کنسٹرکٹ نہیں ہوئی ہیں. کسی جگہ زمینیں کنسٹرکٹ ہو گئی ہیں، کسی جگہ کچھ، کسی جگہ کچھ. یہ لائیو ہمیں ایسے جیسے اب ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ٹائم تو سارا اس کائنات کے اندر ہی گھوم رہا ہے. ہمارے جو اعمال ہیں یا یہاں کا ٹائم اس کا ایرو ون وے ہے. ٹھیک ہے، ہم کا آخر یوم الآخرہ میں یہ ایرو ون وے نہیں ہے. نظریں تیز ہو جائیں گی، پردہ ہٹ جائے گا، یہ 2 وے ہو جائے گا. جس طرح سے آپ ویڈیو دیکھتے ہیں اس کو بیکورڈ بھی کر سکتے. ہمارے ہاتھ پاؤں گواہی دیتے نظر آئے گا، واٹ وی آر ڈوئنگ، یہ بولتے نظر آئے گا. تو یہاں کے لیے یہ جو ہے اس دنیا میں یہ محدود ہے 1 وے ایرو ٹائپ پر ٹائم. تو ہم دیکھ رہے ہیں شروع سے، اور ہمارے اعمال اسی طرح ہیں. اللہ نے کہا یہ آپ کے اعمال کچھ مشکل ہی نہیں ہے. تو ٹائم جو اس دنیا میں تخلیق ہوا ہے تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی باہر نہیں ہے. اب بھی ہم شروع کا ٹائم 13 ارب سال پہلے کیا ہو رہا تھا لائیو دیکھ سکتے ہیں. ان کے لیے وہ ہسٹری ہے، ہمارے لیے پریزنٹ. یہ مین فیچر تھے جی. اب یہ آدم کا جو فائنل پروڈکٹ کی تو ایک لمبی پریزنٹیشن چاہیے، تو میں نے اس کو مختصراً یہاں دے دیا ہے.